This is chapter number 10, Goods and Services Tax, GST. You must have heard a lot about it. Lot of, opposition, lot of problems in facing this. But anyhow, it got implemented and now GST has become an integral and indispensable part of buying and selling. It is a tax. It is a tax, one nation, one tax. Everywhere in India, it is implemented, and everywhere in India, it is now applicable on buying and selling of goods. All goods which you purchase or sell the goods, the tax is to be levied on it. There are different rates, different slabs of the tax on different commodities. The rate of tax is different, right? So that we will study. When this GST was introduced, many other taxes were merged into it. Many other taxes were merged into it. Merged into it means many other taxes which were there earlier, like sales tax, excise duty, service tax, right? All those taxes were merged and this tax was implemented. As I told you earlier, 24th of March 2017, the bill was passed in the parliament with thumping majority, and on 1st July 2017, it got implemented, came into existence, and from that day onwards, it is applicable everywhere. So what are the taxes which are merged in it? Service taxes, excise duties, and different custom taxes, central service tax, sales tax, all state level as well as central level taxes are all merged into it. Purchase tax, VAT, value added tax, VAT is also merged in it. Luxury tax, which is implemented on luxurious items, उस पे टैक्स जो था वो भी अब जीएसटी में आ गया है. Octroi and entry test. Octroi, from one municipal corporation to another municipal corporation, for entry, this octroi tax or entry tax was charged. It is also merged into GST now. Now, in your book, you must see different slabs of the tax are given. Slabs. GST rates structure is given. Rate structure. On essential items. Essential items are those items which are required for living. Food items, essential food items, and milk. But this हिंदी में क्या कहते हैं उसे, that whatever is required essentially for a person to survive, like roti, kapla, and makan. No? Roti here means food. Food means whatever is essential for daily needs, basic needs. For basic needs, whatever essential items are required, there is 0% tax. No tax is levied or charged on essential items. Number 2, common use items. After the basic needs, we require some items. We require clothes to wear, different, makeup items,
clothes, another items which are required for living but not basic items, then on those items it is 5%. On standard items, or the standard rate is 12%. Goods which are not very much required, but they are standard goods, standard items, they are charged 12%. Maximum goods 18%. Luxury goods and tobacco 28%. All the luxurious items, they are purchased by those who are of a very higher income group. So more tax is charged from them, more tax, because they are able to pay. They are able to pay that tax also. So more and more tax is charged on goods and services which are not very essential for the basic living. You get the point? और बेसिक लिविंग, बेसिक नीड्स के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उस पे टैक्स कम होगा. इसलिए जो बिल्कुल बेसिक नीड वाली चीजें उन पे टैक्स ही नहीं है. बहुत सारी आपकी जो मेडिसिन हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्वाइवल, उन पे कोई टैक्स नहीं है. अभी ऑन कोरोना टाइम्स नाउ जितने भी आपके सर्जिकल इक्विपमेंट्स और जितने भी ये सारी चीजें हैं फॉर कोरोना, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है उसमें, राइट. दिस जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट. It is applicable on such goods and items which is not very necessary, but people use it for, say, show off, for luxury, for better living, standard living. तो आप देखिए उसी हिसाब से ये बढ़ते जा रहे हैं. और इसमें जितने भी गुड्स और आइटम आते हैं गवर्नमेंट उसको चेंज भी करती रहती है. कुछ आइटम यहां से वो लग्जरी में भी डाल सकते हैं, इससे जो है इसमें डाल सकते हैं, और कुछ आइटम कॉमन यूज आइटम्स को वो इसेंशियल आइटम्स में भी डाल सकते हैं. तो वो क्या होंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे. तो वी हैव नथिंग टू डू विद ऑल दीज डिफरेंट रेट्स, बट यू शुड नो हाउ द रेट्स आर अप्लाइड. आर यू गेटिंग द पॉइंट, प्रियदर्शनी? Yes, sir. How the rates are applied, what is the criteria, that you should know. The main criteria is for all the essential and daily need requirement goods and services, taxes will be negligible, zero. और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जिन गुड्स की जरूरत कम है और जिनको लोग फॉर शो ऑफ, जैसे आप देखिए गाड़ियों में टैक्स होता है बहुत सारा, जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी आप खरीदेंगे उसमें उतना ज्यादा टैक्स होगा. आप स्टैंडर्ड लिविंग की बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में और उनमें जाएंगे, उनमें जीएसटी जो है ज्यादा होगा, सर्विस टैक्स, राइट. ज्वेलरीज एंड ऑल, इंपोर्टेड आइटम्स एंड ऑल, उस पे जीएसटी ज्यादा होगा. टोबैको, अल्कोहल, उस पे सबसे ज्यादा जीएसटी होगा, बिकॉज दे आर द आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली फॉर बेसिक नीड्स. वो लोग अपनी प्रीफरेंस से, अपने लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से यूज करते हैं. सो दे आर चार्ज्ड मोर एंड दीज स्लैब्स कीप ऑन चेंजिंग. आप कभी न्यूज अगर ध्यान से देखते हो तो आप उसमें देखेंगे दीज स्लैब्स कीप ऑन चेंजिंग, कि अब जीएसटी रेट इस पर्टिकुलर आइटम पे इतना हो गया, जिस पे जीएसटी पहले ज्यादा था अब उस पे कम हो गया. ऑलवेज
ऑलवेज द कंज्यूमर वांट लेस रेट्स, तो हमेशा वो इस अपोजिशन में रहते हैं कि इस पे रेट कम होना चाहिए, इस पे भी कम होना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं वो लोग जो है चाहते हैं कि सीमेंट, सरिया, इनका रेट जो है कम हो, राइट। जो बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, तो वो कहते हैं कि इस पे कम होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से डिसीजन लेती रहती है। टाइम टू टाइम दे कीप ऑन making amendments in the GST rates also, and also different goods they keep on transferring from one to another as per the requirement, as per the demand, as per the necessity. Now some important points, notes: whenever GST is paid, GST is paid on purchase of goods. आप अगर गुड्स खरीदेंगे तो आप जीएसटी पे करेंगे उसको जिससे आपने गुड्स खरीदी, और अगर आप जीएसटी गुड्स को बेचेंगे, यू विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द परचेजर, बट दैट जीएसटी collected will not go into your pocket. That GST will be deposited in the government treasury. तभी गवर्नमेंट ने ये वन टैक्स लगाया सब तरफ। कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल एंड परचेज होती है इंडिया में, तो उस पे एक बार एक जगह टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, एंड दैट टैक्स विल अल्टीमेटली गो टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड इन दीज 2-3 years in millions, billions, trillions GST, because everyone is now complying by it, everyone is now following it, because they have to show it. This has to be, every transaction has to be with the GST. तो गवर्नमेंट के पास उससे क्या आता है, रेवेन्यू आता है। पहले क्या होता था, लोग ऐसे ही सामान बेच देते थे बिना बिल के, बिना जीएसटी के, गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स नहीं जाता था। सो रेवेन्यू वाज अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ इट हैज बीन रेगुलराइज्ड, कंप्यूटराइज्ड, every vendor has been, businessman has been given a different number, टिन नंबर कहते हैं उसे, और वो जो है उसी में अपने बिल बनाते हैं और उसको गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ये भी चैप्टर जो है जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको जनरल एंट्री आ गई है तो ये चैप्टर भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जीएसटी को हमने ऐड करना है, बाकी तो सारी जनरल एंट्री वैसी रहेंगी। मोस्ट ऑफ द जनरल एंट्रीज इन दिस चैप्टर विल बी ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी पे जीएसटी कैसे लगाना है, कैसे जीएसटी को राइट ऑफ करना है। जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं और जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको जमा करना होगा टू द गवर्नमेंट। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है सेल ऑफ गुड्स से, और आपने जीएसटी पे किया है परचेज ऑफ गुड्स से, उसका जो भी डिफरेंस है दैट इज टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको पॉइंट्स बता रहे, so that you get to know what is GST, how it is applicable, what are the different rules and regulations. GST जब आप परचेज के टाइम पे करेंगे, that is known as input GST. It is known as input GST. और जीएसटी जो है दो है, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। एसजीएसटी फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आपकी गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगी, देन इट विल बी सीजीएसटी विल बी चार्ज्ड। और अगर एक ही स्टेट में विद इन द स्टेट इफ गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, देन एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड।
SGST and CGST. SGST goes to state government, CGST goes directly to the central government. Then there is IGST, integrated IGST, for import and export of goods and services across the nation, across the borders internationally. If goods and services are exchanged, then IGST will be charged. ये तो अलग अलग नाम हो गए. SGST for within the state, CGST for interstate, and SGST for international trade and exchange of goods and services. Priyanshu, are you writing? There are also certain आइटम्स जो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं. जब इनपुट जीएसटी, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है. लाइक फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, जो रेस्टोरेंट बिल्स होते हैं, आप वहां जाके पे करते हैं. दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ. वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस बिल्स, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस फॉर हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब, repairs and maintenance of building, etc. Free gifts to staff, etc. क्योंकि ये जो आप पे कर रहे हैं जीएसटी, इन चीजों पे आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि आपको जीएसटी कलेक्ट हो. भाई होटल में जाके आप खाना खा रहे हैं तो होटल वाले आके आपके घर में खाना खा के आपको थोड़ी जीएसटी पे करेंगे. देयर आर सर्टेन केसेस वेयर जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड. तो हम जीएसटी उसमें पे तो करते हैं, बट वी कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी ऑन दोज. देयरफॉर दोज सर्विसेज, दोज केसेस यू शुड नो. Payment of salaries, wages, goods and services for personal use, इनमें कोई जीएसटी नहीं है. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, नो जीएसटी इज चार्ज ऑन इट. जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज, नो जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन एजुकेशनल सर्विसेज. ट्रैवलिंग जो आप करते हैं इधर से उधर, उस पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस पे नो जीएसटी इज चार्ज्ड. इंटरेस्ट रिसीव करना, पे करना, नो जीएसटी. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स,
no GST. Any services which you give to government, any services which you give to government, no GST. No GST is charged on such services also. You read it, all these things in detail, because these points can be asked in the theory. And for numerical also, you should keep these things in mind. Then what are the characteristics of GST? GST is a comprehensive indirect tax. Comprehensive means it consists of so many taxes merged together. जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया है. जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसलिए स्टार्टिंग में बिजनेसमैन ने काफी इसका अपोज किया था. आपको याद होगा जब ये इंप्लीमेंट हुआ था, तो इट वाज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ग्रेजुअली नाउ दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इट, और अपना बिजनेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है चला रहे हैं. There are uniform GST rates everywhere. Uniform GST rates are applicable everywhere. GST paid is not a cost. जब हम GST पे करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए एक्सपेंस है या कॉस्ट है. It is an asset for us. It is an asset for us. क्योंकि हम उसे सेट ऑफ, राइट ऑफ करेंगे जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे. आपने अगर जीएसटी पे भी किया है, 10,000 रुपए जीएसटी पे किया आपने, और 12,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया आपने, तो 12,000 में से 10,000 तो आपका कैंसिल हो गया. 2,000 रुपए आपको जमा करना है गवर्नमेंट को. जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड, दे विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर. तो जो भी आप कलेक्ट करेंगे उसको सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट जीएसटी पेड. जो डिफरेंस आएगा वही आपको जमा करना है बैंक में. तो जो आपने जीएसटी पे किया था वो जीएसटी आपके लिए चार्ज नहीं है. इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज एन असेट विच यू विल सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी चार्ज collected. Also, GST is a value added tax because different taxes are added in it, और सीधे फिर गवर्नमेंट के पास ये चले जाता है in the form of revenue. GST के फायदे क्या हैं? That GST के आने से गुड्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, कॉस्ट. अदरवाइज पहले एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स देना पड़ता था. आप उसे कहीं से खरीद के ला रहे हैं, वहां पर टैक्स दिया, रास्ते में फिर आपको कई जगह म्यूनिसिपल का टैक्स देना पड़ता था, कई जगह पे आपको जो है सेल्स टैक्स देना पड़ता था, एंट्री टैक्स देना पड़ता था. नाउ फॉर वन गुड यू हैव टू पे ओनली वंस. टैक्स इज टू बी पेड ओनली वंस. बिजनेस करने में बहुत आसानी हो गई है. देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. वन नेशन वन टैक्स होने की वजह से वन मार्केट फॉर्म होती जा रही है धीरे धीरे. दो इट विल टेक टाइम, बट इट इज रियली गेटिंग इनटू line. It is really getting into line, and now people are appreciating it because there is less corruption, more transparency. Government is collecting huge revenues which are used for the development purpose. Tax evasion, tax evasion. टैक्स इवेजन कम हो गया है. टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी. नाउ इट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट एंड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड.
tax evasion has reduced and revenue for the government has increased. Goods have become cheaper. Goods have become cheaper. So that is all for today. Theoretical part, revise it, do it in your notebook, and come back for the next class in the third period, business studies. Thank you. God bless all of you.